Good afternoon to all of you. Once again, I welcome you all Good afternoon, sir. in the Good afternoon Good session. afternoon. afternoon, sir. But till now, all have not joined, so we'll wait for 2-3 minutes. Then once again, we'll start. कौन सा लिंक लिंक क्या है आपने जो दिया कोई लिंक है किसी पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो उनको बता दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी लिंक है लिंक के जरिए ज्वाइन करें नमस्ते सर। हाँ जी सर। सर उसे वीवी नगर को ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर। हाँ जी सर, मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या मेरा पर्सनल नंबर पर पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए। पर्सनल नंबर कहाँ से मिलेगा? सर मैंने चैट बॉक्स में सर डाल रखा वीवी नगर से। So, okay, in the past session, the morning session, we completed Google Meet, Google Classroom and its new feature. Then how to schedule our question paper. Then about the Jamboard and interactive board. And then iPad, Apple Pencil, then interactive pad. This thing already done by Vikas Kumar Yadav. Then quizzes also we have taken in our second session, that is taken by Manisha Madam. And in the third lecture, OBS Studio, then how we can do the video recording, video presentation, then iMovie application, and then mirroring application. These things are taken by Priyakant Tarkara from our own KV. And now moving forward, in the afternoon session, we have some new things to share with you. The first lecture in the afternoon session will be taken by our PGT CS, Mrs. Raksha Parmar Madam. He will talk on Open Board app, then Zoom IT and Snipping tool. So how we can use the online interactive board and snipping. Suppose from a PDF file we want something to show to the student, then how we can snip it and show it to the student. So there are many tools are there. That thing will be discussed by Raksha Parmar. So I hope all of you have joined. But till now it is showing 84 only. That means till now some of you have not joined. So if possible, you know each other. You inform others also to join as soon as possible, so that we can start. Otherwise, we will be late. So without wasting time, I invite Raksha Parmar Madam to continue with the lesson. Thank you, sir. Respected principal, sir. Am I audible to you all? Hello? Yes, madam. Yes, Yes. Yes, madam, you are audible. Thank you, thank you. Yes, sir. Respected principal, sir, and all learning teachers, good afternoon, all of you. Myself, Raksha Parmar, PGT Computer Science from KV Sabarmati. Today I will demonstrate you. I am presenting my screen now. Is my screen appear to you all? Hello? Yes. Thank you all, thank you. Today I
I will demonstrate three application. One is a open board application. Open board application that is used for the teaching software, and that is support interactive features while we giving our subject. While we use teaching learning process and we want to elaborate our subject concept to the students. Snipping, second tool I will demonstrate before you, that is a snipping tool. Snipping tool that snips and capture, that is, this is basically used for the images purpose. So if I want to capture instant any pictures, so this snipping tool is useful, and this is a built-in feature of a Microsoft Windows. Third one I will demonstrate, that is a Zoomit application. This is very useful when you present any information online. At that time we use Zoomit option, and this Zoomit, that is a simple application. This is a handy tool, and it supports pen, eraser and text type and zoom option. So first of all, let I start open board application. This open board application, first of all we have to download this from the Google. So open your browser. And type in a search window open board download. When we click open board download, you find out various links are given. So you can click on anyone and download this open board. And this, after downloading this, this is available in a download section. I have already downloaded it. And this is open board installer 1.53 version. So after a simple this is installed within a minute, a light version है ये. After installing this, next to finish, this icon is appear on your screen. When I click on this open board icon, now this is my software from where I start my teaching learning process and demonstrate whatever I want to present before the student. There are various tools available, आप यहाँ पर देख सकते हैं. जो यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है, ये बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो. बैकग्राउंड ऑप्शन आप देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन है. यहाँ इस बैकग्राउंड ऑप्शन की हेल्प से आप if you want to a solid plain white background, then click on this. If you need a grid on a background, so click this icon. And if you need a line, so click on this. So white background and black background, both color are available. Whichever you like, you can use for your canvas. So this option is used to choose a background. This is a stylus button. By using this stylus button, see, when I click on stylus button, so जो पेन, इरेजर, जूम ऑप्शंस अवेलेबल है. टूल्स का जो मेन फीचर है इंटरेक्टिव, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो इंटरेक्टिव बनाता है, वो स्टाइलस बटन यहाँ से आप शो हाइड कर सकते हैं. देखो, एक बार मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो वो शो हो रहा है, एक बार में वो हाइड हो रहा है. सो यहाँ पर ये जो स्टाइलस बटन है, यही जो है वो जब भी हम कोई भी टीचिंग मानी प्रेजेंटेशन में देती हूँ, तो मैं इस फीचर्स का यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकती हूँ, अपने सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलेबोरेट कर सकती हूँ. यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं. वन पेन टूल. पेन टूल जो है वहाँ पर मैं पेन की हेल्प से, मानी ये जो इतना सॉफ्ट माउस से भी मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ. अगर मुझे यहाँ पर कलर चेंज करना है, पेन का कलर चेंज करना है, ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर. आप देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग कलर दिए हुए हैं.
तो आप यहाँ से कलर को चूज़ करके जो भी यहाँ पर मुझे जैसे टाइप करना है या कुछ डिस्प्ले करना है मैं यहाँ से कर सकती हूँ. So various colors are available over here. If you want to change the thickness of a pen, so you can change from here. थिकनेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो. ये मीडियम, लार्ज थिकनेस. So this is a pen tool. If I want to add any file and I want to demonstrate that file, so for that I click on this document button. So when I click on this document button, add button is available. Add page from file. If your presentation is on your computer, so you can click on this add page from file. I want to add my slide inside this open board, so I select this SQL exercise and then click on open. सक्सेसफुली ये मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है. मैं जिस पेज पर नेविगेट करना चाहूँ मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना है और मुझे जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. आई वांट टू एक्सप्लेन अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन if or I want to I have a various pages over here, so I want to navigate on a pages, so I click on this next button. So next through the next button I navigate to the pages, and this button is used to display the all pages available for your presentation जो आपने अभी ऐड किए हैं. तो वेरियस जितने भी पेजेस है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे. वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे मुझे यहाँ से भी यूज़ करना है कि पेज नंबर 15 पे मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी. सो पेज नंबर 15 पर जाऊँगी, या फिर आप यहाँ पर प्रीवियस या नेक्स्ट बटन से नेविगेट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू पेजेस इन योर स्लाइड, सो क्लिक ऑन दिस पेज. सो नया पेज जो भी है आपका करंट जहाँ कर्सर है वहाँ पर वो पेज इंसर्ट हो जाएगा. सो ये जो है वो नेविगेशन पर्पज़ के लिए, पेज का नेविगेशन अगर आपको करना है तो ये बटन का हम यूज़ करेंगे. जैसे मैं यहाँ पर ये स्लाइड है इस पर काम करना चाहती हूँ. अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी मटेरियल है, कंसिडर द टेबल इज़ गिवन हियर एंड आई वांट टू डिस्प्ले व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर दिस. सिलेक्ट एवरी सेल फ्रॉम कंपनी. सो अब मुझे यही पोर्शन को खाली बच्चों को एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर एक बेस्ट फीचर यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैप्चर पोर्शन, सिलेक्टेड पोर्शन, उस पर मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर. एंड ये मैंने इतना पोर्शन जो है वो कट किया. यहाँ मुझे ऑप्शन दिए गए, यू वांट टू ऐड इनटू अ करेंट पेज, यू वांट टू नीड अ न्यू पेज, और यू वांट टू ऐड इनटू अ लाइब्रेरी. सो मैं इतने पोर्शन को नए पेज में ले जाके उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे ऐड टू न्यू पेज किया. न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा. अब ये कितना पोर्शन है मैं बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, नए पेज में मुझे यहाँ मिल गया. जो भी अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि दिस एस आई डी इज़ यूज फॉर दिस इज़ अ कॉलम नेम, दिस सेल इज़ अनदर कॉलम नेम, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स, दिस आर द वेरियस रोज अवेलेबल इन दिस टेबल. सो दिस वे आप यहाँ पर पेन या हाइलाइटर, अगर मुझे ये हाईलाइट करना है कि S05 दैट रो आई हैव टू डिलीट फ्रॉम द टेबल, सो हाइलाइटर का भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ. सो दिस इज टूल फॉर द हाईलाइटिंग एनी टेक्स्ट. सिलेक्ट एवरी सेल फ्रॉम द कंपनी, कंसीडर द टेबल. दिस अनदर टूल इज लेज़र टूल. आप कोई पोर्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कहना चाहते हो S103 दैट हैविंग अ नल वैल्यू, सो पॉइंट आउट करके आप बताना चाहते हो, तो वर्चुअल पॉइंटर इज ऑल्सो अवेलेबल. हैंड टूल, दिस हैंड टूल इज यूज टू नेविगेट मूव योर पेजेस. आप जहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्लेस जूम कर रही हूँ, यहाँ मैंने ऐसे जूम किया, पोर्शन मेरा अभी दिख नहीं रहा है, सो मैं ये हैंड टूल की हेल्प से मैं उसे डाउन करके फिर एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तो ये पेज को मूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. कोई भी पॉइंटिंग आपको करना है, यहाँ पर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर मुझे पॉइंटिंग से बताना है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग टूल है. सो पॉइंटिंग टूल की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो.
अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ लिखना है तो लिखने के लिए मैं यहाँ पर ए पर क्लिक करूँगी, वो आपको टेक्स्ट बॉक्स देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, लाइक राइट ए एसक्यूएल क्वेरी, मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताना चाहती हूँ या आंसर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी टेक्स्ट बॉक्स है, उसे आप कहीं पर भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज़ जो है उस फॉन्ट साइज़ को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज़ को डिक्रीमेंट करेगा। टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये बटन यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज़ इंक्रीज योर फॉन्ट साइज़, ये जो है अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। कलर अगर आपको चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो आपके टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अगर आपको सेम यहाँ पर सेम कॉपी चाहिए तो ये जो बटन यहाँ पर दिया गया दैट इज़ फॉर द डुप्लीकेट कॉपी, सो उसी की डुप्लीकेट कॉपी आपको यहाँ पर मिलेगी। सो इस तरह से मैं यहाँ पर ये स्टाइलस टूल का यूज़ करके अपने जो भी कंसेप्ट है बताना चाहती हूँ सब वो अच्छे से इंटरेक्टिव वे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरा कीबोर्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वर्चुअल कीबोर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप वर्चुअल कीबोर्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो वर्चुअल कीबोर्ड के लिए है। जब आपका कीबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस समय पर आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो मेनू है वो स्टाइलस मेनू है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। इसे शो एंड हाइड आप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर है जो बेस्ट फीचर मुझे इस टीचिंग सॉफ्टवेयर का जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑन डेस्कटॉप। मैं अपने ओपन बोर्ड एप्लीकेशन में जो भी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ, अब मुझे यहाँ पर से मुझे बाहर जो भी है उसमें ये करंट मेरा जो डेस्कटॉप या कंप्यूटर है उसमें जाके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझे कुछ सर्च करना है लाइक SQL, यहाँ पर अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं SQL के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ या कुछ समझाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर वो SQL की वेबसाइट को ओपन किया। सो मेरे जो जितने स्टाइलस टूल थे ओपन बोर्ड के शो ऑन डेस्कटॉप पर मुझे अवेलेबल होंगे। आप इस टूल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो वर्चुअल पॉइंटर या इसे इस तरह से मैं यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि दिस SQL इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड दैट इज़ यूज फॉर द प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन फॉर द मैनेजिंग डेटा फील्ड। सो ऑन डेस्कटॉप फीचर जो है वो आप ओपन बोर्ड के बाहर भी इस सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इरेजर टूल जो भी आपने लिखा हुआ है उसे यहाँ से इरेज करना है तो इरेजर टूल को हम यूज़ करेंगे। अगेन आई वॉन्ट टू गो टू बैक टू द ओपन बोर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है शो ओपन बोर्ड। जब मैं शो ओपन बोर्ड पर क्लिक करूँगी तो मैं वापस अपने ओपन बोर्ड एप्लीकेशन में आ जाऊँगी। सो दिस इज़ वेरी मच यूजफुल ऑप्शन इन अ ओपन बोर्ड। नेक्स्ट जो टूल्स यहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको एक आइकन टाइप कुछ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर उस पर जब क्लिक करूँगी सो ओपन बोर्ड के अंदर जितने भी आप PDF यूज़ करते हैं या फिर पिक्चर्स हैं सो ऑर्गेनाइज वे में सारे फोल्डर्स में यहाँ पर स्टोर होते हैं। मैं यहाँ पर इनबिल्ट एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहती हूँ ओपन बोर्ड में। सो आई क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन के अंदर में जाऊँगी तो यहाँ पर बहुत सारे ये जो मैथ्स के टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि उनको रूलर्स की हेल्प से कुछ एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर रूलर टूल अवेलेबल है। देन प्रोटेक्टर यूज़ करना है, प्रोटेक्टर टूल की हेल्प से जो भी आपको प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है कर सकते हैं। ट्राइंगल टूल ऑल्सो अवेलेबल, कंपास टूल ऑल्सो अवेलेबल। तो ये टूल जो है इनबिल्ट अवेलेबल है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर SST के टीचर हैं तो उन्हें मैप की हेल्प चाहिए, मैप की हेल्प से कुछ डिस्प्ले करना है, एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पर ये टूल का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको ड्रैग करना है,
चाहती हूँ मुझे इंडिया इंडिया का मैप चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मुझे अहमदाबाद सर्च करवाना है सो अहमदाबाद की डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिलेगी। सो इस तरह से काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर नोट्स क्रिएट करने हैं तो नोट्स भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। नोट्स टूल ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर आप टाइप करके अपने जो भी नोट्स बनाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन के दौरान आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कलर पिक टूल है, वो आपकी कलर जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर बताए कि यहाँ पर ये कलर पेंट के कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अपने कलर भी लेना चाहते हो तो पिक्चर यहाँ पर टूल जो है इससे आप कैप्चर कर सकते हो कलर। तो ये सारी जो टूल्स है वो आपको एप्लीकेशन टूल में मिलेंगे और ये जो है राइट हैंड साइड पर अवेलेबल होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड को टॉप कॉर्नर पर ओपन बोर्ड पर आप जब क्लिक करेंगे सो मुझे मेरा ओपन बोर्ड हाइड कर देना है। सो मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगी तो ओपन बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। देन प्रेफरेंस जो है उसमें वेरियस सेटिंग दिए हुए हैं, उसमें जाके आप सेटिंग जैसे कि मुझे पेन की ग्रेड जो है वो चेंज करना है, पेन का कलर चेंज करना है, थिकनेस चेंज करनी है, जो डिफ़ॉल्ट दी गई होती है ओपन बोर्ड में वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस में जाके सेट कर सकते हैं। ग्रेड जो है उसकी ओपेसिटी जैसे मैंने बताया कि सिंपल बैकग्राउंड भी मिलता है, प्लेन बैकग्राउंड मिलता है, लाइन बैकग्राउंड मिलता है, ग्रेड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप उसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। सो प्रेफरेंस टूल जो है उसमें आप अपने हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अनदर मेन फीचर जो मुझे यहाँ पर लगता है, कई बार क्या है क्योंकि हम जब डेमोस्ट्रेट करते हैं तो बच्चे एब्सेंट होते हैं और उस बच्चे तक मुझे जो भी आज मैंने लेसन दिया है वो बताना है। सो यहाँ पर इनबिल्ट फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट ऑप्शन। जैसे मैं पॉडकास्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँगी सो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा। आप जो भी जब आपका सेशन स्टार्ट करेंगे सो यहाँ पर पॉडकास्ट पर क्लिक करने से यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो जो भी आप पढ़ाओगे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग सो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। और सेटिंग अगर आपको करनी है सो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है इसलिए यहाँ पर सेटिंग नहीं बता रहा है। सो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग अ रिकॉर्डिंग आप सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। सो इस तरह से मैं अपने एक्सक्यूज मैडम। यस सर। मैडम ये ओपन बोर्ड एप्लीकेशन में कौन सा सिलेक्ट करना है, किसको निकालना है, वो प्ले स्टोर में गया या यस सर ये जो है विंडोज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको गूगल में जाके इसे सर्च करना है, ओपन बोर्ड EXE आपको मिलेगी। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं ड्राइव लिंक आपसे शेयर कर दूंगी सर, सॉफ्टवेयर की ड्राइव लिंक आपको शेयर कर दूंगी। जस्ट आपको नेक्स्ट टू फिनिश ही करना है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही ईजीली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो और विद इन अ मिनट आपका ये सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। ओके, थैंक यू मैडम। सो मुझे ये फीचर भी बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ तो मैं स्टार्ट अगर करती हूँ तो ये वाला मेरा सिस्टम है, मैं जो एब्सेंट बच्चे हैं उन तक पहुँचा सकूँ। एंड मुझे यहाँ ओपन बोर्ड से क्विट होना है, तो मैं ये क्विट ऑप्शन को क्लिक करूँगी। वन मोर ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ अ वेब ऑप्शन। सो आप सर्च करना चाहते हो इनबिल्ट तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर मोस्टली सारे फीचर्स जो है ओपन बोर्ड के वो बताने की कोशिश की है और मुझे लग रहा है कि ये टीचिंग सॉफ्टवेयर आप अपने यूजुअल Excuse me, ma'am. से। यस मैम।
यस मैम। मैम ये जो आपने कैप्चर पोर्शन वाला जो दिखाया था ना मैम, वो एक बार फिर से दिखा दीजिए ना। Yes. जब हम डॉक्यूमेंट या Yes. टेक्स्ट खोलते हैं फिर Yes, ma'am. वो एक बार फिर से दिखा दीजिए। थैंक यू। श्योर मैम। आई वॉन्ट टू क्रिएट ओके, मैं इसे बंद कर देती हूँ, एक बार मैं बंद कर देती हूँ मैम इसे, और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बोर्ड जो ये आइकन यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ये जो आइकन है, ये आइकन पर हमें क्लिक करना है। वंस व्हेन आई इंस्टॉल माय ओपन बोर्ड ऑन माय डेस्कटॉप और लैपटॉप, दिस आइकन इज ऑटोमेटिकली कम ऑन अ डेस्कटॉप। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जब मैं डबल क्लिक यहाँ पर करूँगी तो मेरी ओपन बोर्ड की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गई। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे मेरा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आई है, वो माई प्रेजेंटेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ PDF और इन द फॉर्म ऑफ PPT। सो अब मुझे वो फाइल यहाँ पर लानी है। सो इसके लिए मैं यहाँ ये जो आइकन है डॉक्यूमेंट आइकन, इस पर क्लिक करूँगी। सो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद मुझे जो भी PPT है वो मेरे कंप्यूटर में अभी है, तो उस ऐड पर क्लिक करूँगी, ऐड पेजेस फ्रॉम फाइल। When I click on this add pages from file, so the path I browse my file from the computer। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपका जहाँ पर भी है कंप्यूटर में, आपने जहाँ कहीं भी रखा हुआ है वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सर्च कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखी हुई थी, आप जस्ट सैम्पल फाइल। सो कोई एक फ़ाइल जो है मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर इंसर्टिंग पेजेस का ऑप्शन आएगा, तो नंबर ऑफ जितनी स्लाइड्स होगी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब पर्टिकुलर जो पेजेस है, जैसे कि मुझे ये पेजेस पर जाना है, यहाँ पर क्योंकि मेरा पूरा सेशन था, मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने 17 स्लाइड्स तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट सेशन में मुझे यहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पोर्शन जो है बच्चे को बताना है कि व्हाट इज़ अ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर एंड हाउ वी यूज़ दिस इन एंड नॉट इन ऑपरेटर इन SQL। सो ये जो पूरी स्लाइड है उसमें से सिलेक्टेड पोर्शन को लेके मुझे एक्सप्लेन करना है। फॉर दैट यहाँ पर देखिए मैम, ये जो कैप्चर वाला ये कैची का जो ऑप्शन दिख रहा है ए के बाजू में, उस पर हमें क्लिक करना है। ये वाला जो ऑप्शन है मैम, इसे हम क्लिक करेंगे। मैं सिलेक्ट करूंगी पोर्शन, ये मुझे जो भी नेक्स्ट पेजेस पर ले जाना है उस पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूंगी। नाउ व्हेन आई सिलेक्ट दिस पोर्शन, सो इट टेल अस वेयर यू वांट दिस पोर्शन, सिलेक्टेड पोर्शन इन योर करंट पेज, in your new page, or you want to store at a library for a future use. So I want to select a new page. So this portion available in our new page, and in this new page I can explain or elaborate this concept as I wish. तो this way मैं ये फीचर को यूज़ कर सकती हूँ मैम। Got it मैम, थैंक यू सो मच। और तो आई थिंक मैंने ये फीचर्स आपको मोस्टली सारे, और ये जो बैकग्राउंड वाला फीचर्स है, मुझे लग रहा है कि ये प्राइमरी सेक्शन में अच्छा यूज़फुल रहेगा। जो बच्चे ABC जो भी यूज़ करते हैं या लिखने प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए शायद ये जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और इरेजर टूल, ये जो इरेजर टूल है वो एंटायर स्क्रीन को इरेज करेगा, और ये जो यहाँ पर इरेजर है, ये इरेजर है वो सिलेक्टेड पोर्शन जो आपको रिमूव करना है उस पोर्शन को रिमूव करेगा। लेकिन पूरे पेज को मुझे ब्लैंक कर देना है, तो मैं यहाँ पर ये इरेजर टूल पर क्लिक करूँगी, तो वो मेरी पूरी एंटायर स्क्रीन को इरेज कर देगा। सो यहाँ पर मैं क्विट पर क्लिक करूँगी, और पॉडकास्ट का जो रिकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि ये तो है कि चलो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल होगा डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर ये आपका ये जो मैंने अभी सिंपल एग्जांपल बताया था ना, सो ये आपका रिकॉर्डिंग डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। देखिए जो भी आप पढ़ाओगे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू सो ये
तो यहाँ पर मुझे ओपन बोर्ड पे जो टीचिंग सॉफ्टवेयर है उसमें स्टाइलस का सोन डेस्कटॉप एंड पॉडकास्ट का जो फीचर है वो बहुत ही यूज़फुल लगता है। और प्लस जो एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल है एसएसटी टीचर के लिए एंड फॉर द मैथ्स टीचर, वो भी मुझे लग रही है कि बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके क्लास के दौरान अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन जो जूमीट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन, ये तो ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर तो जनरली जब मैं क्लास लेती हूँ तो उस समय यूज़ करती हूँ, बट सिंपल जस्ट कभी कोई प्रेजेंटेशन देना है और मुझे वहाँ पर सारे फीचर्स इतने ज़रूरी नहीं है, मुझे खाली पेन चाहिए, इरेजर चाहिए और जूम टूल चाहिए, सिंपल ये चाहिए तो मैं वहाँ पर हैंग हो गया, इधर बंद कर दीजिए। नेटवर्क गया तो हमें खाली हाले जाओ तो अभी हाँ जस्ट 1 तो सेकंड कोने के नेट ना मैसेज में ना आपने प्रश्न एक तो क्वेश्चन आया अभी तो कोई मैडम चलो ठीक है मैं ઝૂમિટ ત્યાં નાખ્યું નથી. ઓકે તો ત્યાંથી જ લઈ લઉં છું. ત્યાં નેટ જ કર્યું છે. નેટ ગયું. આવ્યું? ચાલુ થઈ ગઈ સાહેબ લે છે અચ્છા એમનો ચાલુ થઈ ગયું. એમનું ચાલુ નહીં ખાલી એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન ઓકે તો મારું પતી ગયું. હા બરોબર છે મને સોચા પછી મોબાઈલ થેન્ક યુ કરો તમે ફિનિશ કરો. ફિનિશ કરી દેવાનું બીજના તૈયાર જ છે બરોબર ચેન્જ કરવા વાળા તમારું થેન્ક गया था वो मैंने देखा उसमें कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसमें टीचर का एक फोटो भी वीडियो भी आ रहा है और उसी टाइम पर वो अनोटेशन भी कर रहे हैं. यही आप yes sir कि हाउ हाँ सर. इसके लिए सर हमारे देखिए उसमें दो ऑप्शन है आपके पास. एक तो OBS स्टूडियो इज द बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट वी कैन यूज. एंड सेकंड जो है सर वो आप प्रीमियम वर्जन में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनसे आप बनवा सकते हैं, स्टूडियो सेटअप करा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा ये OBS स्टूडियो जो मैंने अभी किया थी. मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके बता रहा हूँ सर. एक्चुअली वो अपना बंद हो गया ना इतना समय शुरू कर दिया. हाँ अपना यहाँ से नेट चला
Okay sir, now you can see my video. यस सर। यस सर, यस सर। आपको दिख रही होगी, जहाँ पर मैं आपको टीचिंग के लिए मीन्स पीडीएफ में अनोटेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अनोटेशन टूल मीन्स में इंटरेक्टिव पैड या वो मैंने ऐड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, अदरवाइज मैं यहाँ अनोटेट भी कर सकता हूँ और मेरा जो वीडियो है वो साइमल्टेनियसली चलता भी रहेगा सर। तो इस टाइप से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यू कैन मेक इट लाइव। आप YouTube के थ्रू इसको लाइव भी कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वीडियो भी है और ये जो आपका स्क्रीन डिस्प्ले है और मेरा ऑडियो है, ये सब कुछ आपको दिखेगा, लाइव दिखेगा, जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करते हैं। अब वहाँ पर आप लाइव जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाइव चैट भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पुट कर सकते हैं और आप उनको इजीली देख सकते हैं। तो आप OBS स्टूडियो का आप यूज कीजिए, इसमें ये बेस्ट है सर। सर एक बार ये ऑपरेशन फिर से बता दीजिए सर। हाँ मैम, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीन आपने फर्स्ट सीन मीन्स एक स्क्रीन है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई आपकी स्क्रीन पर। अब इस सीन पर आप यहाँ जाएंगे सोर्सेज में, और सोर्सेज में ऐड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन फर्स्ट आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस, जो आपका वेबकैम यूज करना है, तो वेबकैम आपने यूज किया, हियर यू कैन राइट दैट वेबकैम, तो आपको इजीली समझ में आएगा वेबकैम। ओके, तो मेरा वेबकैम ये ऑन हो गया बाय डिफॉल्ट, सेटिंग्स जो हैं वही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये वेबकैम स्क्रीन पर आ गया। नाउ आई कैन एडजस्ट द साइज ऑफ माय वेबकैम स्क्रीन एंड मुझे यहाँ इसको टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, वो मैं रख सकता हूँ। देन अनदर स्क्रीन दैट आई वांट टू डिस्प्ले, मान लो कि मेरे को कोई एक PDF दिखाना है या गूगल क्रोम दिखाना है, व्हाटएवर, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन अगेन एंड विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर ऑप्शन इज देयर, सो आई हैव टू क्लिक ऑन विंडो कैप्चर और लेट आई वांट टू शो PDF, तो PDF मैं यहाँ लिखूंगा जिससे मेरे को इजी रहे समझने में, PDF। देन आई हैव टू सेलेक्ट विंडो, क्योंकि मेरे यहाँ काफी विंडो ओपन है, तो मैं यहाँ पर PDF वाली विंडो ओपन करता हूँ। अगर PDF, 1 मिनट, फर्स्ट आई हैव टू ओपन दिस PDF, देन मैं इसको एक बार कैंसिल कर दूँ, देन अगेन प्लस विंडो कैप्चर, मैं लिख देता हूँ PDF1, ओके। देन अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पर मेरी PDF दिख गई है, आई हैव टू सेलेक्ट दैट PDF और ओके। तो ये PDF कंप्लीट आ गई है, लेकिन आप देखेंगे मेरी जो इमेज है या जो मेरा वीडियो है वो इसके नीचे चला गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये जो वेबकैम आप देख रहे हैं, वेबकैम के ऑर्डर को ऊपर करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए आप, देन यहाँ एक ऑप्शन है ऑर्डर, और ऑर्डर में आप मूव अप पे क्लिक कर दीजिए। वेबकैम में जो ऑर्डर है उस पे मूव अप में क्लिक कर दीजिए, 1 मिनट, ऑर्डर एंड मूव अप। तो ये मेरी जो वीडियो है वो स्क्रीन है, इसके ऊपर आ गया। अब मान लो कि मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट ही दिखाना है, पूरा PDF नहीं दिखाना, तो आप अल्ट बटन का यूज करेंगे। देन उसके बाद में जो स्क्रीन है उसकी साइज को आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर पार्ट ही दिखेगा उस स्क्रीन का। लेट मैं ऊपर ये जो टूल बॉक्स है ये नहीं दिखाना चाह रहा, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। अब इस स्क्रीन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ये विंडो दिखेगी। तो यहाँ पर आप टीचिंग में इसको यूज कर सकते हैं, टीचर का वीडियो भी आएगा एज वेल एज यहाँ पर आपकी स्क्रीन भी आएगी और ऑडियो भी जाएगा, और आप इसको लाइव यूट्यूब पे दिखा भी सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। रक्षा मैडम, हैंडेड ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास सर। Now my next
next application, that is Zoomit application. Zoomit application that is we use for the presentation purpose. Simple ये handy and simple tool है. यहाँ पर मैं maximum पेन, इरेजर, टाइपिंग या जूम अगर मुझे करना है कोई भी पोर्शन को, तो मैं वहाँ पर ये 4 ऑप्शन का यूज़ कर सकती हूँ. जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ आप लोगों को बता रही थी कि ओपन बोर्ड में बताना चाहती हूँ यहाँ पर. तो ये मैं जूमिट ऑप्शन का ही यूज़ कर रही थी. मैं यहाँ पर ये जो शो हिडन आइकन कर्सर है वहाँ पर क्लिक करूँगी तो एक आइकन आप देखिए यहाँ पर टास्क बार में जूमिट करके एक आइकन ट्रे आइकन पर अवेलेबल है. ये आइकन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे ये डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी ड्रॉ बटन पर. ड्रॉ बटन पर क्लिक करूँगी तो देखो मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो गया. प्लस कर्सर मेरा अब जो एरो कर्सर था वो प्लस में चेंज हो गया. ये जो आइकन है इसकी हेल्प से मैं पेन एज अ पेन मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगी कि आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन ओपन बोर्ड, आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन स्नीपिंग टूल. तो इस तरह से मैं यहाँ पर ऑन डेस्कटॉप में आप जो भी बताना चाहती हूँ, प्रेजेंट करना चाहती हूँ, पेन टूल का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ. ये पेन के जो कलर है उस कलर को मुझे चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ में बी मतलब ब्लू कलर, शिफ्ट बी. सो मैं पेन का कलर यहाँ पर चेंज करूँगी. शिफ्ट पी, शिफ्ट की के साथ सो पिंक कलर. शिफ्ट आर वो रेड कलर. सो इस तरह से ये पेन आप जो है जहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करना है कोई चीज़, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग के थ्रू कुछ बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ कंप्यूटर की ये मॉनिटर स्क्रीन है, ये जो है यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर इससे हम माउस को अटैच करते तो ये माउस है. तो इस तरह से मैं पेन के हेल्प से अपने स्क्रीन जो है डेस्कटॉप स्क्रीन उसमें मैं जो भी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पेन की हेल्प से मैं कर सकती हूँ बाय यूजिंग जूम इट टूल. यहाँ पर अब मैंने जो लिखा है वो मुझे इरेज करना है. यस मैम. ये जो है जूम इट, जैसे हमने अपना टेक्स्ट का PDF खोल रखा है, हाँ, तो क्या उसमें भी कर सकते? हाँ मैं बताऊँ. मैं जैसे कि मैं जैसे अब इसे मुझे इरेज कर देना है, आपको एस्केप की को प्रेस करना है. अब मैं यहाँ पर मेरा जो प्रोग्रामिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है मैं उसमें जैसे बच्चों को प्रोग्रामिंग करवा रही हूँ. ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर ये ओपन किया, मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग करती हूँ और उस दौरान मुझे उस पोर्शन को एक्सप्लेन करना है. जैसे मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख रही हूँ. प्रिंट अब ये जो प्रिंट फंक्शन है, वाई वी यूज़ दिस प्रिंट फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन, यहाँ पर ये किस तरह से हम लिखते हैं. तो ये मुझे बाय यूजिंग पेन एक्सप्लेन करना है. मैं यहाँ पर ये जो ट्रे आइकन में क्लिक करूँगी, यहाँ से ये जूम इट ये आइकन है उस पर क्लिक करूँगी और ड्रॉ बटन में जाऊँगी. और ड्रॉ बटन में जैसे ही जाऊँगी तो मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा और आप जो भी चीज़ बताना चाहते हैं कि प्रिंट फंक्शन दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले वट एवर मैसेज यू कन्वे टू person that we write in this double quote, the message that is a welcome to all. तो इस तरह से मैं ये पेन का यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ. सो आप कोई भी आपकी जो भी PDF फाइल है, PPT फाइल है, उसमें आप इस जूम इट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं. एस्केप की से आपने जो लिखा है वो वहाँ से इरेज हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो मैंने अभी बताया कि शिफ्ट की के साथ हम बी करेंगे या शिफ्ट ब्लू कलर मुझे चाहिए पेन का तो शिफ्ट बी यूज़ करेंगे. सो ये तो याद नहीं रहेगा. तो जब आप जूम इट को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन बटन अवेलेबल है और ऑप्शन बटन में सारे जो अभी मैंने आपको बताया इफ़ यू वांट टू चेंज अ पेन कलर सो दिस रेड, शिफ्ट के साथ आपको R प्रेस करना है, ग्रीन, शिफ्ट G, शिफ्ट ब्लू. तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. अगर आपको टाइपिंग मोड में आप कुछ टाइप करना चाहते हो सो आपको T प्रेस करना है. T प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ प्रिंट फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ यूज फॉर
डिस्प्ले मैसेज। सो आप टाइप भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके लिए आपको T प्रेस करना है, T फॉर टमेटो। इरेज करना है, फिर से एस्केप की को प्रेस कीजिए तो इरेज हो जाएगा। सो ये सिंपल टूल है, सिंपल ओनली पेन इरेजर के लिए आपको जो चाहिए या टाइपिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। जूम इट उससे भी सिंपल, अगर कहाँ से लेंगे तो जूम इट के लिए, अगर आपको जूम इट चाहिए तो सिंपल आपको ब्राउज़र में जाना है। गूगल में जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए जूम इट। विद इन अ सेकेंड आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जूम इट पर क्लिक करिए। सो अवेलेबल वेरियस लिंक्स आर अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनी लिंक। जैसे ही मैं जूम इट को डाउनलोड करूँगी तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल होगा। इसमें ये जो फाइल है वो जीप फाइल रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करके आप जहाँ पर भी इसे स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पर आप स्टोर कर दीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर एक बार आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैं ये डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरी ट्रे आइकन पर अवेलेबल होगा सॉफ्टवेयर। सो ये हो गया जूम इट के बारे में इंफॉर्मेशन। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये अच्छा लगता है स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल जो है वो बिल्ट इन टूल है, वो हमें कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगी स्नीपिंग टूल, तो ये टूल आपको यहाँ पर ऐप ये मिल जाएगी। आपको ये डेस्कटॉप पर चाहिए तो ओपन फाइल लोकेशन में जाके आप राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर आप ले सकते हो। मुझे कोई पिक्चर है, पिक्चर्स को स्नैप लेनी है। जैसे ये पिक्चर की मुझे स्नैप लेनी है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल लोगो शिफ्ट एस, जैसे मैं लोगो शिफ्ट एस प्रेस करूँगी तो आप देखो कि यहाँ पर स्नीपिंग का टूल आ जाएगा। सिलेक्ट इट एंड सेव दिस स्नीप टू एनीवेयर, जहाँ आपको सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये फीचर जो मैंने अभी बताया लोगो शिफ्ट एस, अभी हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सीबीएसई की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रही थी और वहाँ पर हमें ये बताया गया था कि जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाले हैं उस समय पर हमें इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और जो बच्चा अपीयर हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको मुझे सेव करके रखना है। तो उस समय पर ये वाला जो फीचर है, जस्ट मुझे क्या करना है, मेरी स्क्रीन अभी अपीयर हो रही है, मुझे करना है लोगो शिफ्ट एस। सो ये आपको स्नैप यहाँ पर मिलेगा और जो आपको सेव क्लिक करना चाहते हो, कैप्चर करना चाहते हो, आपको वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जहाँ आपको सेव करना है, सेव बटन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुझे ये टूल मैंने सोचा कि मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। सो आप में से अगर किसी को कोई और क्वेश्चन मैम, ये जो स्निपेट टूल है मैम, हाँ तो मैम, जैसे कभी पैसेज लेना है, हाँ और मैम, वो पैसेज का उन्होंने कॉपी पेस्ट करना जो है डिसेबल, जैसे मैम जूम इट ये है और ये मुझे एक्सप्लेन करना है कहीं आगे। सो मैं यहाँ पर लोगो शिफ्ट एस, ये मैंने शॉर्टकट की आपको बताई है। वहाँ अगर आपको ये नहीं अगर पता है या हो सकता है कि आप भूल जाओ तो क्या करेंगे, स्निपिंग टूल जो है हमारा उसको आप क्लिक करेंगे, ये स्निपिंग टूल। अब मुझे यहाँ पर न्यू
पर मैं क्लिक, अरे अगेन स्किपिंग आ गया, जैसे ये, सो ये मैंने पोर्शन यहाँ पर लिया, जहाँ आपको चाहिए उसे सेव कर दीजिए इतने पोर्शन को। आप इसी को ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यहाँ पर पेन टूल अवेलेबल है, पेन की हेल्प से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो यूज़ करिए, ये पेन को, ये कलर को क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को यहाँ पर, सो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। उतने पोर्शन को आप सेव करना चाहते हैं तो उतने पोर्शन को क्रॉप करके आप सेव कीजिए। यहाँ पर ये राइट मार्क्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो उतना पोर्शन आपका क्रॉप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं उसे सेव करना चाहती हूँ, पिक्चर को मैंने सेव बटन पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर पूछेंगे कि कहाँ पर सेव करना है, यहाँ आप नेम दे दीजिए A1 एंड डेस्कटॉप, सो ये A1 नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगा। Thank you all of you for your patience to hear me. मैंने अपना सेशन यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू ऑल। सो आप थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मैं हैंड ओवर कर रही हूँ प्रियकांत सर को स्क्रीन। जी नमस्ते। बहुत अच्छा रक्षा मैडम, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई किस तरीके से फाइनल क्वेश्चन करना है। इस सेशन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कमलेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल आवर टीचर्स। जो प्रेजेंटेशन मैम ने दिया है, रक्षा मैम ने, बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। हमारा एक ही एम रहता है कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का हित हो। तो जो हम ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा रहे हैं गूगल मीट की हेल्प से, यदि उसको मोबाइल से यदि हम विंडो सिस्टम पर लाए, कहने का मतलब कंप्यूटर पर कराए, तो हमको ओपन बोर्ड एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ताकि जो मैडम ने अभी हमको बहुत बढ़िया तरीके से बताया, उसमें हम और अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि किस टाइप से किसी भी, जैसे जियोग्राफी का कोई टॉपिक है, ग्राफिकल टॉपिक है, उसको अपन कलर्ड में या अलग स्लाइड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो हमको ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हैं और जो हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है। उसमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो मैं प्रिंसिपल साहब के साबरमती का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी स्टाफ जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक ही एम रहेगा कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, उनको एक इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उनको इजीली कोई भी टॉपिक है वो आराम से समझ में आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, Kamlesh. And I also convey my thanks to Raksha Madam, our केंद्रीय विद्यालय PGDCS। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत कुछ समझाया। हालांकि हमने शुरू में सोचा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से हमने जो कुछ हमने सिलेक्ट किया जो कि यूजफुल हो, और इसमें हम सभी एक एक सॉफ्टवेयर के लिए वैसे तो देखा जाए या एक एक टूल के लिए 2 दिन या 3 दिन पे लग जाता है, लेकिन हमने इसको मतलब शॉर्ट करके आधा घंटा 1 घंटा इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया, जिससे कि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप तक पहुँचा पाए। और वैसे भी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर को जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे, टूल्स को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, यूजर जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेगा, उस हिसाब से तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हम बहुत कुछ बताएंगे लेकिन आप मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, 2 दिन तक बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स के बारे में बताया जाए। और सिमिलरली देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर वन, माइक्रोसॉफ्ट वन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होता है, उसी तरीके से एक्सेल फाइल होता है, पीपीटी फाइल होता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट हैज आल्सो वन सॉफ्टवेयर, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। बेसिकली इट इज ए नोटबुक टाइप सॉफ्टवेयर।
जैसे हमारा पास नोटबुक होता है, हम अपना नोटबुक में मतलब कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट का मान के चलते हैं, टीचर साइंस के टीचर हैं तो उन्होंने पढ़ाया, फिर नोटबुक का एक प्रॉपर नाम रहेगा कि नोटबुक का नाम बच्चे ने जो है साइंस के बुक के नाम पे साइंस बुक के नाम के, साइंस टेक्स्ट बुक के नाम, साइंस नोटबुक के नाम पे उन्होंने नाम दे दिया। तो पहला बात जो है, हम जब भी वन नोट हम यूज करेंगे, एक हमारे पास एक नोटबुक होगा, जैसे साइंस का नोटबुक है, और जिस हिसाब से आप अलग अलग डेट पे आप पढ़ाते जाएंगे, तो पहले तो नोटबुक को हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। जैसे हम लेते हैं, पहले तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं साइंस का नोटबुक को, फिजिक्स पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट, बायोलॉजी पार्ट, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर है, मोशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एनर्जी है, सो मेनी टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स में। फिर फिजिक्स में फिर उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर हर एक टॉपिक, जैसे मोशन आप पढ़ाने वाले हैं तो मोशन फिर आप अलग अलग दिन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आज आपने पढ़ाया, आज का डेट में पढ़ाया, फिर आप उसको कल का डेट में पढ़ाएंगे, फिर परसों का डेट में पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से फिर जो है टॉपिक का फिर सब टॉपिक होगा, और फिर डेट वाइज भी होगा। इसी तरीके से नोटबुक में जब आप नोटबुक हम यूज करेंगे, इसमें आप देखिएगा बहुत ही मतलब इजी सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है, और इसमें हमारा बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे भी पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कुछ जो प्रोफेशनल इसको यूज कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको हम अपना केंद्रीय विद्यालय में यूज किया जाए। इसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप डेली आप क्या पढ़ा रहे हैं उसका भी एक रिकॉर्ड रहेगा, जैसे आप लिख के पढ़ा रहे हैं, या आप राइटिंग पैड यूज कर रहे हैं या आईपैड के जरिए आप पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं पेज वाइज पढ़ा रहे हैं, उसमें आप डेट डाल दीजिए और ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, उसके अंदर सेव होते जाएगा। और इसी तरीके से अब बाद में 1 साल का बाद आपका पास अपना खुद का एक नोटबुक होगा, जिसमें पूरा का पूरा आप किस तरीके से पढ़ाए, टॉपिक वाइज पढ़ाए, डेट वाइज पढ़ाए, सभी का मतलब एक मतलब हम बोल सकते हैं एक मतलब पूरा आपका पास एक रहेगा, जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि मैंने साल भर में इस तरीके से इस स्टेट में इस तरह का हमने काम किया। तो इसके लिए किसी को अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर टीचिंग इन द राइटिंग पेड, or whatever you are showing to the student in online era, in pandemic era, everything will be stored automatically, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और इसके बाद वीडियो आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही आपके लिए जो है मैंने देखा है बहुत ही हमारे लिए हेल्प। इसके जरिए आप अपना राइटिंग पेड को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जो मटेरियल पीडीएफ मटेरियल आप बच्चों का साथ शेयर कर रहे हैं, और पीडीएफ मटेरियल के साथ जो प्रिंट आउट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग कैन बी kept in our notebook. So Microsoft OneNote. So it is very useful for you. So first, kindly I will request you kindly just listen to the video, and then we will discuss about it. आप सब सुन पा रहे हैं? Yes, sir. No, sir. The audio is not there. Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं, it is coming actually. આ વિડિયો ભાઈ ભાઈ તો થઈ આવી એમાં શું સુઈ આવો અને આપણી એડવર્ટાઇઝ થઈ જાય माइक अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको।
सर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। सर सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आज साहेब मैंने के मैंने जानी है तो नहीं यार सर ऑडियो नहीं आ रही है। सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहाँ शुरू किया किसी तरह मैं तो ये प्रैक्टिस करूँ ना तो सीध उतना ही जाओ क्या पर भाई मैंने ये टॉपिक आपको दिया था ये वाला ये जितना दिया कल तो मेरी हालत ये भाई सुना क्या भाई मैं जियो लिब्रा चालू करूँ कहाँ करूँगा आवाज़
No, sir. Now, yes, there is some problem, technical problem is there. So now we have solved it. Probably now we can play the video. Once again we'll try. पण हवा क्या करूँ कैसे सर आपका भी नहीं दिखता है वो ना Is it audible? No, sir. सर जहाँ से प्रेजेंटिंग हो रही है उसे अनम्यूट कीजिए ना Sir, we can watch directly on YouTube link, sir. Link is already sent, sir. Sir, link तो ग्रुप में भेज दिया, उसमें देख सकते हैं हम थोड़ी देर देख के फिर. सर आपके माइक का सेटिंग करना चाहिए. अभी तक तो माइक ठीक ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. नहीं जब माइक आप सेट करते हो ना तो ऑडियो वीडियो में organized. You see, I'm constantly thinking of tasks I need to do. I have. Yes, sir. Now it's playing properly. I need to write down the name of a new app someone just told me about. I ended up collecting these in different places, and none of them were being synced. A lot of these disappeared into a backup. In this video, I'm going to share with you some OneNote tips and tricks. Now all can hear? Yes, sir. सर ऑडियो नहीं आ रहा है अभी फिर से. सर प्रेजेंटेशन में ऑडियो ऑफ है अभी भी. यस सर प्रेजेंटेशन वाला ऑडियो ऑन कीजिए सर वो ऑफ है इससे नहीं आ रहा है उसका माइक अनम्यूट करिए सर. प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन पे माइक अनम्यूट होगा तो आ जाएगा. सर पहले जो YouTube का जो लिंक चैट में शेयर किया गया उस पर क्लिक कर दीजिए. जो आपका YouTube ओपन है तो अब आप शेयर पे जाइए सर. शेयर पे शेयर पे सर वन टैप कीजिए. ओनली टैप शेयर पे. ओके ओनली टैप कीजिए सर. मैं तो मुंह धलवाई हूँ मेरे को यहाँ से उतरे. Your mind is for having ideas, not holding them. So we need to find a way to record and store these ideas externally so we can concentrate on Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's where OneNote comes in for me. OneNote is a digital notebook, but it's much more than that. I'm sure you're going to agree with me by the time you get to the end of this video. Let's get to my OneNote productivity tips. Number 1, use hierarchies to get organized. A great feature in OneNote is that you can create your own hierarchy structure. There are 3 main levels. The highest level is the notebook. Just like the physical notebook, they can hold many pages. Next level down are sections. Think of this like chapters in a book. And finally, there are pages. These hold your actual notes. Let's say we create a notebook to hold all your recipes. We can either right-click and select New Notebook, or we click on the Add Notebook down here. The sections in this notebook could be the different types of dishes. So we can create a section for appetizers, one for main dishes, one for vegetarian dishes, one for desserts, and so on. You get the idea. Within the sections, we add the separate pages for the actual recipe. So here, we have a recipe for a wild rice and mushroom burger. We have the ingredients, the directions, and we can add pictures and even link to where we got the recipe from.
Apart from these recipes, I usually have notebooks for ideas for videos with different sections depending on the progress, like brainstorming, research, or scripting. And I have a notebook for private things like shopping lists, vacation, and so on. If you need more hierarchy levels, you can cluster multiple sections into a section group. After you created a group, you can drag sections into the group. Another level you can create are subpages. To be able to use them, you need to have at least 2 pages in a specific section. So let's say here, I have a page with my meeting notes from Excel conferences. I can create subpages with the notes for the individual sections. So I have a page called Session Notes, Excel Conference Bulgaria, and subpages for each session. To create subpages, just click on the page you want to turn into a subpage and select Make Subpage. It's going to indent the title. You can even have another level for a subpage. That's a subpage of a subpage. I don't use these as much, but if you have a lot of notes and need a detailed structure, they can be really helpful. So to summarize, these are the different hierarchy levels you can have. Notebook, section group, section, page, subpage 1, subpage 2. Just start out with a structure that makes sense to you. You can always change it or add to it later. Number 2, use tags to find what you need. Tags are a great way to categorize and group notes together that aren't in the same notebook or section. So let's say I'm in my notebook for general video ideas, in this case for Power Query, where I have a note for learning and basics. Let's say this is something I want to consider doing soon. By using the drop-down Tag This Note up here, I can select different default tags to add to the note or to parts of the note. So I can tag this with Remember for Later, so I don't forget about it. In another notebook for my research, I have a page to check out this app for a barcode reader. I can tag this note with the same Remember for Later. So now I marked 2 notes that are in totally different notebooks with the same tag, meaning although they are in a different hierarchy, they're still grouped together, and it's easy to find your tag notes later on. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use... So let's say you want to check all notes that are tagged with Remember for Later. All you have to do is to click the search icon here on the left, then either just click in the search bar and select from the tags it will suggest down here. Or just start typing what you're looking for and select the tag that you want. And you're going to get a list of all the notes containing this tag. You can either use the default tags, but I recommend you also create your own tag system or your own custom tags. You just need to click the Create New Tag down here, and you can then name it and select an icon for it. Currently, there isn't a way to rearrange the tags like you could in previous versions of OneNote. New ones will always be added below, so don't go overboard and just keep the number of custom tags limited. So in short, use tags to categorize notes. There are many applications for tags. Just use them depending on your needs. So for example, let's say you want to stay on top of tasks you assigned to your team members, or use these to highlight important parts in your learning notes. They make it really easy to find what you need when you need it. Number 3, capture ideas anywhere with sticky notes. When I'm out and about, I used to scribble down things I don't want to forget on a piece of paper. Then they either got lost or I spent a lot of time searching through my bag. Not anymore. I discovered